Hello everyone, welcome to this insightful discussion on the minimum support price MSP and its implications for Indian agriculture and rural development. MSP is a highly debated topic and today we will analyze its importance, limitations and alternative approaches. नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और भारतीय कृषि तथा ग्रामीण विकास पर इसके प्रभावों पर चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और आज हम इसके फायदे, सीमाएं और अन्य संभावित समाधानों का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The debate over instituting a legally binding minimum support price (MSP) for crops has gained attention in recent years. While the intention behind MSP is to provide financial security to farmers, it is often criticized for being a narrow and counterproductive approach. फसलों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था को लेकर हाल के वर्षों में बहस तेज हुई है। एमएसपी का मुख्य उद्देश्य किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यह एक संकीर्ण और प्रतिकूल नीति हो सकती है। द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया इज हाईली कॉम्प्लेक्स, facing challenges such as climate-induced production shocks, price volatility, and changing dietary preferences. भारत में कृषि क्षेत्र अत्यंत जटिल है, जो जलवायु जनित उत्पादन झटकों, मूल्य अस्थिरता और बदलती आहार प्राथमिकताओं जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। A legal MSP framework overlooks these complexities and may further exacerbate rural poverty and distort the agriculture markets. कानूनी एमएसपी ढांचा इन जटिलताओं को नज़रअंदाज करता है और ग्रामीण गरीबी की ओर बढ़ा सकता है, साथ ही कृषि बाजारों को भी बाधित कर सकता है। Here, now that we have understood why MSP is a widely debated issue, let's first define what is MSP and how it functions in India's agriculture system. अब जब हमने यह समझ लिया है कि MSP एक चर्चित मुद्दा क्यों है, तो चलिए पहले यह समझते हैं कि MSP वास्तव में क्या है और यह भारत की कृषि प्रणाली में कैसे काम करता है। The minimum support price (MSP) is a price fixed by the Government of India to ensure that farmers get a guaranteed price for their produce irrespective of market fluctuations. It acts as a safety net to protect farmers from distressed sales. The Commission for Agriculture Cost and Prices (CSCP) recommends MSP for 23 crops every year, including the cereals, pulses, oilseeds, and commercial crops. न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी भारत सरकार द्वारा निर्धारित एक मूल्य है जिसका उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का एक निश्चित मूल्य सुनिश्चित करना है, चाहे बाजार की स्थिति कुछ भी हो। यह किसानों को संकटग्रस्त बिक्री डिस्ट्रेस सेल्स से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग (CSCP) हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है, जिसमें अनाज, दालें, तिलहन और वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। The Food Corporation of India (FCI) and other agencies procure the food grains at MSP to maintain the buffer stocks and support the PDS (Public Distribution System). भारतीय खाद्य निगम (FCI) और अन्य एजेंसियां MSP पर खाद्यान्न खरीदती हैं ताकि बफर स्टॉक बनाए रखा जा सके और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को समर्थन मिल सके। While MSP serves as a price safety net for farmers, it has several limitations that makes it less effective in the long run. Let's now explore the major challenges associated with the MSP. हालांकि MSP किसानों के लिए एक मूल्य सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसमें कई कमियां हैं जो इसे दीर्घकालिक रूप से कम प्रभावी बनाती हैं। आइए MSP से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को समझते हैं। Despite its benefit, MSP has several limitations that makes it an inefficient tool for long-term agricultural growth. हालांकि एमएसपी किसानों को कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इसके कई महत्वपूर्ण सीमाएं हैं जो इसे दीर्घकालिक कृषि विकास के लिए एक अप्रभावी नीति बनाती है। The first one is the limited procurement coverage. The government primarily procures only wheat and rice, leaving the other crops like pulses and oilseeds out of the support system. This discourages crop diversification and leads to overdependence and on a few stable crops. पहला, सीमित सरकारी खरीद। सरकार मुख्य रूप से गेहूं और चावल की ही खरीद करती है, जिससे दालों और तिलहनों जैसी अन्य फसलें समर्थन से बाहर रह जाती हैं। इसमें फसल विविधीकरण को हानि होती है और किसान कुछ ही फसलों पर निर्भर हो जाते हैं। द सेकेंड वन इज द मार्केट डिस्टॉर्शन। When MSP is artificially high, it disrupts the market forces, leading to excessive production of select crops and creating the inefficiencies in supply chains. दूसरा, बाजार में असंतुलन। जब एमएसपी कृत्रिम रूप से अधिक होता है तो यह बाजार संतुलन को बिगाड़ता है, जिससे कुछ फसलों का अत्यधिक उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में अक्षमता पैदा होती है। द थर्ड वन इज द बजटरी बर्डन।
Large scale procurement under MSP places a heavy financial burden on the exchequer. Storage, transportation, and wastage of grains add to the fiscal stress. तीसरा, आर्थिक बोझ। एमएसपी के तहत बड़े पैमाने पर खरीदारी सरकारी बजट पर भारी दबाव डालती है। भंडारण, परिवहन और खाद्यान्न की बर्बादी से वित्तीय संकट बढ़ता है। The fourth one is the limited benefit to farmers. Studies indicate that only 6% of the farmers directly benefit from the MSP procurement. The majority of farmers, especially small and marginal ones, sell their produce in local markets at lower prices. चौथा, किसानों तक सीमित लाभ। अध्ययनों से पता चलता है कि केवल 6% किसान एमएसपी खरीद का सीधा लाभ उठाते हैं। अधिकांश किसान, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान, अपनी उपज स्थानीय बाजारों में कम कीमतों पर बेच देते हैं। The fifth one is the distorted rural livelihoods. Many rural workers, including traders and small retailers, rely on free market pricing. Artificially inflated MSPs reduces the retail margins and negatively impact other stakeholders in the agricultural value chain. पांचवा, ग्रामीण आजीविका पर प्रभाव। कई ग्रामीण श्रमिक, व्यापारी और छोटे खुदरा विक्रेता मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण पर निर्भर रहते हैं। एमएसपी के कारण खुदरा मार्जिन कम हो जाता है और कृषि आपूर्ति श्रृंखला में अन्य हितधारकों को नुकसान होता है। Since we have seen the issues with the current MSP framework, the question arises, what can be done to improve the situation? Let's discuss some alternative policy measures that can better the support farmers. अब तक हमने देखा कि वर्तमान एमएसपी प्रणाली में कई खामियां हैं, तो सवाल यह उठता है कि इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। आइए कुछ वैकल्पिक नीतियों उपायों पर चर्चा करते हैं। टू मेक इंडियन एग्रीकल्चर मोर रिजिलियंट, एक्सपर्ट्स सजेस्ट की पॉलिसी अल्टरनेटिव्स। द फर्स्ट वन इज द क्वाजी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, QUBI. This would be a targeted income support scheme for rural households similar to PM Kisan. It ensures that even those farmers who can not benefit from MSP receive the direct financial assistance. भारतीय कृषि को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए विशेषज्ञों ने नीतिगत विकल्प सुझाए हैं। पहला, क्वासी यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यह एक लक्षित आय सहायता योजना होगी जो पीएम किसान की तरह ग्रामीण परिवारों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इससे उन किसानों को भी लाभ मिलेगा जो एमएसपी का सीधा लाभ नहीं उठा पाते। द सेकेंड वन इज द प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट्स। If market prices fall below the MSP, farmers receive direct compensation for their losses without forcing the government to procure excess produce. दूसरा, मूल्य घाटा भुगतान। यदि बाजार मूल्य एमएसपी से कम होता है तो किसानों को सीधा मुआवजा दिया जाएगा, जिससे सरकार को अधिक उत्पादन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। One crucial aspect often ignored in the MSP debate is the need for a strong market intelligence system. Farmers frequently suffer from extreme price fluctuations due to unpredictable market demand and supply shocks. A real-time price monitoring system would provide farmers with better decision-making power, allowing them to plan their crop choices based on the price trends rather than relying solely on government intervention. एमएसपी की बहस में एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है वह है एक मजबूत बाजार खुफिया प्रणाली की आवश्यकता। किसान अक्सर अनिश्चित बाजार मांग और आपूर्ति झटकों के कारण मूल्य अस्थिरता, प्राइस फ्लक्चुएशंस का शिकार होते हैं। एक रियल टाइम मूल्य निगरानी प्रणाली किसानों को बेहतर निर्णय लेने के लिए शक्ति प्रदान कर सकती है, जिससे वे सरकारी हस्तक्षेप पर निर्भर रहने के बजाय मूल्य प्रवृत्तियों के आधार पर अपनी फसल योजना बना सकें। द अदर वन इज द डाइवर्सिफाइड पब्लिक प्रोक्योरमेंट, विविधीकृत सार्वजनिक खरीद प्रणाली की आवश्यकता। करेंटली गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट फोकसेज हेवली ऑन व्हीट एंड राइस, which discourage the farmers from growing other crops like pulses, oilseeds and millets. वर्तमान में सरकार की खरीद नीति मुख्य रूप से गेहूं और चावल पर केंद्रित है, जिससे किसान दलहन, तिलहन और मोटे अनाज जैसी फसलें उगाने से हतोत्साहित होते हैं। This leads to an imbalanced agriculture system where water-intensive crops dominate, causing long-term environmental issues such as groundwater depletion. इससे असंतुलित कृषि प्रणाली विकसित होती है जहां जल गहन वाटर इंटेंसिव फसलें हावी हो जाती हैं, जिससे भूजल संकट जैसी पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट शुड इवॉल्व बाय इंक्लूडिंग अ ब्रॉडर रेंज ऑफ क्रॉप्स इन द पीडीएस, मिड डे मील्स एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स. दिस विल नॉट ओनली प्रोवाइड सपोर्ट टू फार्मर्स बट ऑल्सो इम्प्रूव इंडियाज फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी. सार्वजनिक खरीद नीति को विकसित करना चाहिए ताकि पीडीएस, मिड डे मील और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में अधिक विविध फसलों को शामिल किया जा सके.
इससे न केवल किसानों को मूल्य समर्थन मिलेगा, बल्कि भारत की खाद्य सुरक्षा और पोषण विविधता भी बढ़ेगी। However, one existing scheme that addresses some of these issues is the PM ASHA, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. This program aims to strengthen MSP implementation through a price deficiency payment system and market assurance schemes. However, its effectiveness depends on proper execution by the state governments. एक मौजूदा योजना जो इन समस्याओं को कुछ हद तक हल करने का प्रयास करती है वह है PM आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान. यह योजना MSP को प्रभावी बनाने के लिए मूल्य घाटा भुगतान प्रणाली और बाजार आश्वासन योजनाओं को लागू करती है, लेकिन इसकी सफलता राज्य सरकार द्वारा उचित कार्यान्वयन पर निर्भर करती है. By reforming MSP and expanding the procurement strategies, we can create a more sustainable agricultural framework. Now, let's summarize everything we have discussed so far and see the way forward. MSP में सुधार करके और खरीद रणनीतियों का विस्तार करके हम एक अधिक अस्थायी कृषि ढांचा बना सकते हैं. While MSP provides short-term relief, it is not a long-term solution. The focus should shift towards income support schemes, better procurement strategies, and price stability mechanisms to ensure the sustainable agricultural growth. A legal MSP alone will not solve India's agrarian crisis. A dynamic, multi-pronged approach is needed. हालांकि MSP अल्पकालिक राहत प्रदान करता है, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है. कृषि के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए आय सहायता योजनाएं, बेहतर खरीद रणनीतियां और मूल्य स्थिरता तंत्र की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. केवल कानूनी MSP से भारत के कृषि संकट का समाधान नहीं होगा. इसके लिए एक व्यापक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक यू सो मच.